ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبد الواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ چلیے دوستو، رخ کرتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں کی طرف۔ شاہین باغ علاقے میں جنوبی دہلی میونسپل کارپوریشن کی جانب سے مبینہ تجاوزات کے خلاف انہدامی کارروائی کرنے کے لیے بلڈوزر پہنچا، جس کو لے کر علاقے کے سیاسی، سماجی اور ملی شخصیات نے زوردار احتجاج کیا۔ تقریباً 4 گھنٹے کے بعد ایس ڈی ایم کے دستے کو اسٹرنگ اور مرمت کے کام کے لیے لگے بانس و بلی کو ہٹا کر خالی ہاتھ لوٹنا پڑا۔ پیر کو صبح جیسے ہی ایم سی ڈی کا بلڈوزر شاہین باغ کے مین روڈ سریتا وہار اور گاندھی گنج کے درمیان پہنچا تو علاقے کے لوگ بڑی تعداد میں جمع ہو گئے۔ بلڈوزر کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ لوگ بلڈوزر کے اوپر چڑھ کر نعرے بازی کرنے لگے۔ اس موقع پر کانگریس اور عام آدمی پارٹی کے علاقے کے سرگرم کارکنان نے شدید احتجاج کیا اور کہا کہ شاہین باغ میں کسی طرح کے تجاوزات نہیں ہیں۔ اگر کہیں تجاوزات ہے تو ایس ڈی ایم سی نشاندہی کرے، یہاں کے لوگ خود ہٹا دیں گے۔ مظاہرین نے کہا کہ غریبوں کے مکانات اور دکانوں پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، شاہین باغ میں بلڈوزر نہیں چلنے دیا جائے گا۔ اس موقع پر مظاہرین نے بی جے پی کے خلاف نعرے بازی کی۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ عام آدمی پارٹی کے رکن اسمبلی امانت اللہ خان کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ جنوب مشرقی دہلی کے ڈی سی پی ایشا پانڈے نے کہا ہے کہ ایس ڈی ایم سی کی شکایت پر آئی پی سی کی دفعہ 186، 353، 34 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ جنوبی دہلی میونسپل کارپوریشن کے میئر مکیش سوریان نے کارپوریشن کمشنر کو ایک خط لکھ کر مطالبہ کیا تھا کہ پیر کو شاہین باغ میں کارپوریشن کی جانب سے کی جا رہی مبینہ غیر قانونی تجاوزات کے خلاف کارروائی میں رکاوٹ ڈالنے والے مقامی ایم ایل اے امانت اللہ خان اور کونسلر واحد خان کے خلاف مناسب کارروائی کرتے ہوئے ایف آئی آر درج کی جائے۔ واضح رہے کہ قومی دارالحکومت دہلی کے مسلم اکثریت علاقہ شاہین باغ میں جنوبی دہلی میونسپل کارپوریشن کی جانب سے مبینہ تجاوزات کے خلاف انہدامی کارروائی کرنے کے لیے بلڈوزر پہنچا، جس کو لے کر علاقے کے سیاسی، سماجی اور ملی شخصیات نے زوردار احتجاج کیا۔ تقریباً 4 گھنٹے کے بعد ایس ڈی ایم کے دستے کو اسٹرنگ اور مرمت کے کام کے لیے لگے بانس بلی کو ہٹا کر خالی ہاتھ لوٹنا پڑا۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ راجیہ سبھا کے سابق رکن پارلیمنٹ اور اسلامی اسکالر عبداللہ خان اعظمی کی چاندپور علاقے میں کانفرنس ہوئی۔ بڑی تعداد میں عقیدت مند پہنچے۔ اسکالر نے کہا کہ ہاں سے ہندو اور ماں سے مسلمان تبھی ہم بنتا ہے۔ یہاں تمام مذاہب کے لوگ ہولی، دیوالی، عید، تمام تہوار ایک ساتھ مناتے ہیں۔ کسی بھی مذہب کا پڑوسی بھوکا نہیں سونا چاہیے، یہ ہمارے ہندوستان کی تہذیب و تمدن رہی ہے۔ کورونا میں تمام مذاہب کے لوگوں نے مل کر کام کیا۔ موجودہ دور میں متحد ہونے کی بہت ضرورت ہے تاکہ ہم آنے والی نسلوں کو ایک پیغام دے سکیں۔ وہ عید ملن کے نام سے لوگوں نے اس پروگرام کو رکھا ہے اور اپنی خوشی میں دوسروں کو بھی شامل کرنا یہ انسان کی بہترین صفت ہے۔ لہذا آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا کہ عید ملن کے موقع پر ہندو مسلم آپس میں ایک دوسرے سے مل کر آپسی محبت اور بھائی چارے کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم نے ہولی ملن میں بھی دیکھا ہے۔ تو ہندوؤں اور مسلمانوں کے جو تہوار ہیں وہ دونوں تہوار یہ میسج دیتے ہیں کہ پڑھو لکھو انسان بنو، بھارت کی پہچان بنو۔ اور جب آدمی پڑھ لکھ کر کے اپنے دیش کی پہچان بنتا ہے تو اپنے دیش کی وراثتوں کی وہ حفاظت کرتا ہے۔ ہندوستان جن لوگوں کے ذریعے پہچانا جاتا ہے اور جس تہذیب اور وراثت سے پہچانا جاتا ہے، وہ تہذیب اور وراثت آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے معاشرے سے نکل گئی ہے۔ ہندوستان میں ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں شری رام کی شخصیت،
श्री कृष्ण की शख्सियत ऐसी है जिनके ज़रिए इंसाफ, भाईचारा और दूरदर्शिता का पैगाम मिलता है। इसी तरह हम इस हिंदुस्तान को मिली जुली तहजीब के ज़रिए गंगा जमुनी तहजीब की मंजिल कहते हैं। इस मुल्क में राम के सामाजिक न्याय, कृष्ण की मोहब्बत भरी बंसुरी और सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की आपसी रवादारी का झंडा हमेशा बुलंद रहा है। और इन तमाम लोगों का एक ही मैसेज रहा है, जो मैसेज हम ईद मिलन के मौके पर लोगों को देते हैं। एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए, शजर कहते हैं पेड़ को, दरख्त। एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए जिसका हमसाये के आंगन में भी छाया जाए। हम अपने पेड़ का फल खुद ही खाएं। ये ईद मिलन के मौके पर हम अपनी खुशियों का इजहार अपने दूसरे गैर मुस्लिम भाइयों में भी करते हैं और उनको भी मीठी ईद, इसको मीठी ईद भी कहते हैं। मीठी ईद के मौके पर उनके भी खान पान का इंतज़ाम करके हम ये पैगाम देते हैं और देना चाहिए कि एक बनो, नेक बनो। और फिर लंबी बात अगर मैं करूँगा तो इस प्रोग्राम का मकसद यह है कि अंग्रेज़ों के ज़माने में हमारे देश के हिंदू मुस्लिम दोनों गुलाम थे, मगर अंग्रेज़ों की ताकत का मुकाबला हम किसी औजारों हथियार से नहीं कर सकते थे। ऐसी सूरत में हमारे देश के हिंदू मुस्लिम पूर्वजों ने ये सोचा कि कोई ऐसी ताकत पैदा की जाए जिस ताकत के ज़रिए तन के गोरे मन के काले अंग्रेज 7 समुंदर पार भागें और हिंदुस्तान का हिंदू मुसलमान आज़ादी के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारे। इसलिए वो ताकत जो पैदा की गई, वो ताकत थी कौमी एकता। हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाना, मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ाना, ये अंग्रेज़ों की ताकत का सरचश्मा था। हमारे हिंदू मुस्लिम पूर्वजों ने, हिंदू शुरू होता है ह से और मुस्लिम शुरू होता है माँ से, वहाँ से हिंदू का हा निकाला, यहाँ से मुस्लिम का माँ निकाला और मिलाकर इस दोनों को रखा तो हम बना तो हमारी एक ताकत बनी और हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। आज भी हमारा पैगाम ये है कि हम हिंदुस्तान की आज़ादी को अगर बरकरार रखना चाहते हैं तो हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि हिंदुओं और मुसलमानों में जो नफ़रत की सियासत पैदा की गई है, इस नफ़रत की सियासत को मोहब्बत की सियासत में तब्दील किया जाए। बड़ों का अदब और छोटों के साथ प्यार, अगर ये चीज़ हमारे अंदर पैदा हो जाए तो कोई न कोई हमसे छोटा है और कोई न कोई हमसे बड़ा है। जब हम छोटे के साथ प्यार करने लगेंगे और बड़े की इज्जत मानवता की बुनियाद पे करेंगे तो आप हमें बताइए फिर फसाद कहाँ होगा, झगड़ा कहाँ होगा, नफ़रत कहाँ पैदा होगी। इसलिए इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि सिर्फ पैगाम मोहब्बत को हिंदुओं और मुसलमानों में आम किया जाए और इनको समझाया जाए कि तुम हिंदुस्तानी हो। जिस तरह एक हिंदू हिंदू से नफ़रत ना करे, जिस तरह एक मुसलमान मुसलमान से नफ़रत ना करे, उसी तरह एक हिंदुस्तानी को भी हिंदुस्तानी से नफ़रत नहीं करना चाहिए। यही हमारा संदेश है, यही हमारा पैगाम है और यही आज के जलसे का निचोड़ है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू और कश्मीर के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के साबिका अहलिया पायल नाथ के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के दौरे के दौरान एक तनाज़ुर सामने आया है। बताया जा रहा है कि पीर की सुबह उमर अब्दुल्ला के साबिक बीवी पायल नाथ अपने दोनों बच्चों के साथ मंगला आरती देखने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंची, जिसके लिए उन्होंने 3 टिकट भी खरीदे थे और तीनों ने तकरीबन 1 घंटे तक मंगला आरती भी देखी। लेकिन बाद में जब उन्होंने मंदिर में दाखिल होना चाहा तो उन्हें कुछ खिदमतगारों और मंदिर के अमले ने रोक दिया। अगरचे उमर अब्दुल्ला का नाम सुनकर मंदिर के कुछ लोग कुछ हिचकिचाहट का शिकार हुए, लेकिन उसके बाद भी उन्हें मुकम्मल आरती देखने को मिली है और कायद के मुताबिक आरती को टिकट में शामिल करना होता है, न कि दर्शन के इंतज़ाम का। उन्होंने दर्शन किया या नहीं उसके बारे में कोई इत्तला नहीं मिली।
जम्मू और कश्मीर के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की साबिक अहलिया साल 2019 में बनारस आ चुकी थी और उस वक्त भी उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा की थी और बाद में गंगा आरती में भी शिरकत की। उमर अब्दुल्ला और पायल नाथ ने 2011 में अलहदगी इख्तियार कर ली थी। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। दारुल हुकूमत दिल्ली में शहरियों की सेहत का हवाला देते हुए शिमाली दिल्ली इलाके में गुज़िश्ता कुछ दिनों से नॉर्थ एमसीडी मुबीना गैर कानूनी गोश्त की दुकानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। इस पूरी कार्रवाई के तहत जहां गुज़िश्ता दिनों 14 दुकानों को सील किया गया था, पीर को उस पूरी मुहिम के तहत की गई कार्रवाई में 17 दुकानों को सील किया गया है। कमिश्नर संजय गोयल ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि कारपोरेशन की जानिब से मुबीना गैर कानूनी गोश्त की दुकानों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। मुल्क की राजधानी दिल्ली में सियासी माहौल पूरी तरह से गर्म है, जहां एक तरफ कारपोरेशन की जानिब से मुबीना नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, दूसरी तरफ नॉर्थ एमसीडी शिमाली दिल्ली के इलाके में मुबीना गैर कानूनी गोश्त की दुकानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है और उन्हें सील कर रही है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र से दिल्ली पहुंचे आज़ाद रुकने पार्लियामेंट नवनीत राणा और उनके रुकने असेंबली शोहर रवि राणे ने मुंबई में हुई सियासी हंगामा आराई पर लोकसभा स्पीकर से शिकायत की। उसके बाद दिल्ली में वाक़ अपने सरकारी रहायशगाह पहुंचे, जहां पहले से मौजूद उनके हामियों ने जय श्री राम के नारे लगाकर उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रुकने पार्लियामेंट नवनीत राणा ने कहा है कि जब तक मेरे शोहर और हम मुंबई में थे तब तक बीएमसी वाले नहीं आए, लेकिन जैसे ही हम दिल्ली के लिए रवाना हुए हमारे घर पर पहुंच गए। हम हुकूमती कार्रवाई में मुदाखलत नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि अगर हमारे घर में तजावुज़ात है तो बीएमसी वाले तोड़ दे। हम जानते हैं कि महाराष्ट्र हुकूमत कोई भी बहाना बनाकर हमारा घर तोड़ेगी। रुकने पार्लियामेंट ने कहा है कि महाराष्ट्र हुकूमत ने तजावुज़ात का इल्ज़ाम लगाकर हमें बेघर भी कर दिया तो भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हुकूमती कार्रवाई के दौरान भी खामोश रहूँगा। हमारा एक ही घर है, अगर गिरा भी दिया गया तो भी कुछ नहीं कहूँगी। उन्होंने कहा है कि जहाँ तक उद्धव ठाकरे का ताल्लुक़ है, वो ऐसे वज़ीर आला है जो 2 साल तक वज़ीर आला के दफ्तर नहीं गए, उनसे और क्या उम्मीद की जा सकती है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। श्रीलंका के वज़ीर आज़म महिंदा राजापक्से ने पीर के रोज़ आखिरकार अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। वज़ीर आज़म ने उस वक्त अपना ओहदा छोड़ दिया जब हज़ारों शहरी उनके खिलाफ सड़कों पर निकल आए। कोलंबो शदीद इक़्तिसादी और तवानाई के बहरान का सामना कर रही श्रीलंका के वज़ीर आज़म महिंदा राजापक्से ने पीर को आखिरकार अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। राजापक्से ने इससे कबल ओहदा छोड़ने से इनकार कर दिया था। श्रीलंका के मकामी मीडिया ने यह खबर दी है कि वज़ीर आज़म ने उस वक्त अपना ओहदा छोड़ दिया जब हज़ारों शहरी सड़कों पर निकल आए। सदर गोटाबाया राजापक्से और उनके भाई महिंदा राजापक्से को मुल्क की संगीन सूरत हाल का जिम्मेदार ठहराते हुए मुल्क भर में हज़ारों लोग सदर और वज़ीर आज़म दोनों के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं। वाज़ेह रहे कि राजापक्से ने यह कदम अपोजिशन के अबूरी हुकूमत की तश्कील के मुतालबे के सामने झुकते हुए उठाया है। फिलहाल की खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी, आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।